Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath inaugurated the monsoon session of the UP Legislative Council, calling it the largest in the country and a model for others. He welcomed all members and emphasized the importance of meaningful discussion to address public concerns. Highlighting the Council's achievements over the past 8.5 years, he said this session will focus on fulfilling the aspirations of 25 crore citizens. The government also plans a 27-hour continuous sitting to debate the Vision Document 2047, aiming to shape UP's future development through inclusive dialogue. उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र आज से प्रारंभ होने जा रहा है। सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए आए हुए सभी सम्मानित सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल देश के अंदर किसी भी विधानमंडल का सबसे बड़ा विधानमंडल है। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जनता से जुड़े हुए, विकास से जुड़े हुए जिन मुद्दों पर माननीय जनप्रतिनिधिगण चर्चा करते हैं, देश के अंदर वह एक नज़ीर के रूप में देखी जाती है। पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को चर्चा का विषय बनाया है। जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इस बार का सत्र भी काफी महत्वपूर्ण सत्र है। इसमें जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर 25 करोड़ की आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से विधायिका की भूमिका किस रूप में आगे बढ़ती है, इन सब पर बहुत महत्वपूर्ण एजेंडे के साथ हम लोग इस सत्र में, यहाँ पर मानसून सत्र में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज से सत्र प्रारंभ होगा, तो सत्र प्रारंभ होने के साथ ही क्वेश्चन आवर, जिसमें माननीय सदस्यों के द्वारा जनता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रश्न पूछे जाएंगे। 0 आवर में अपनी बातों को रखा जाएगा और सरकार की तरफ से उन सब का एक सार्थक जवाब भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर मानसून सत्र है, तो स्वाभाविक रूप से बाढ़ से जुड़ा उत्तर प्रदेश विधानमंडल का Responding to the Election Commission's notice to Rahul Gandhi over his vote theft allegations, Karnataka Home Minister G. Parmeshwara said the Congress Party President will provide necessary clarifications. He asserted that Gandhi possesses documents and proof to support his claims, which will be submitted in due course. The EC has asked Gandhi to substantiate his allegations regarding voter fraud in Karnataka's Mahadevpura constituency, where he claimed over 100,000 votes were stolen through duplicate entries and fake addresses. Parmeshwara emphasized that the party stands by Gandhi's claims and will follow due procedure. No, all those questions will be answered by PCC President. All those clarifications will be given by the PCC President. Rahul Gandhi simply has not raised these questions. There are proofs, there are documentations, all those things will be submitted in due course.
respect to CM Ibrahim, he mentions on an open stage that Siddaramaiah had also had a need to buy 3,000 votes and he has repaid that. No, it's Chief Minister has already answered that question. On what context he has made that statement, we'll have to see. No, all those questions. Ahead of the monsoon session of the Uttar Pradesh Assembly, Speaker Satish Mahana emphasized the importance of constructive dialogue in a democracy. He stated that the Assembly is the temple of democracy where every member has a duty to represent public concerns through discussion. Mahana expressed satisfaction over the outcome of the recent all-party meeting, where leaders from across the political spectrum pledged to ensure the session runs smoothly. He also highlighted the upcoming 24-hour marathon debate on the Vision Document 2047 for holistic development, calling it a milestone for legislative transparency and accountability. देखिए, लोकतंत्र में चर्चा पर चर्चा के माध्यम से जनता की समस्याएं उस पटल के ऊपर रखना और जनता की जो अपेक्षाएं उनको पूरा करके जनता को जवाब दे जनता के प्रति। तो ये लोकतंत्र का मंदिर है, सदन है, इसमें सब लोगों की अपनी अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है और सबको उस जिम्मेवारी को समझना चाहिए। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि कल जब ऑल पार्टी मीटिंग थी तो सभी राजनीतिक दलों ने विधानसभा के सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना सहयोग देने का प्रॉमिस किया। देखिए, जब तक कोई विजन नहीं होगा तब तक उसको पूरा नहीं करना है ना कोई आधार बनाना चाहिए। और लोकतंत्र में जिस समय विधानसभा में चुने हुए प्रतिनिधियों की बातचीत होती है, उनके द्वारा जो नीचे की ग्राउंड रियलिटीज होती है वो सामने समझ में आती है। अभी उसके ऊपर चर्चा होगी, उसके बाद जनता के बीच में सरकार का मंतव्य है कि जनता के बीच में इस चर्चा को लेकर जाएंगे और पब्लिक से भी सुझाव मांगे जाएंगे। QR कोड के माध्यम से सब लोगों को सुझाव मांगे जाएंगे और उस समय फिर जब लगभग 3 महीने के बाद समय उसका समय निर्धारित है जो पूरा हो जाएगा, फिर एक विजन डॉक्यूमेंट बनेगा जो फिर विधानसभा में आएगा, फिर उसके ऊपर चर्चा होगी। समय सीमा सरकार तय करती है और ये कई दशकों से है। मानसून सत्र कितना चला उसको पहले उठा के सभी लोग देख लें। नहीं, हम सबको संभालेंगे, हमारे साथ सब है, हम सबको संभालेंगे और सब लोग विधानसभा चले अच्छी तरीके से। मैं सबसे सहयोग की भी अपेक्षा करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ और जनता का हित भी इसी में और राजनीतिक दलों का भी हित इसी में है कि जनता की बात उस पटल के ऊपर रखें। देखिए, लोकतंत्र में RSS Chief Mohan Bhagwat, inaugurating the Madhav Srishti Arogya Kendra in Indore, emphasized the urgent need for accessible and affordable healthcare and education. He criticized the commercialization of these sectors, stating that quality services remain out of reach for the common man. Bhagwat advocated for a return to the spirit of service, highlighting Dharma as a more meaningful and unifying concept than the technical term CSR. He expressed concern over the limited availability and high cost of cancer treatment, urging capable individuals to contribute to societal welfare through compassionate service. स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो विषय ऐसे हैं आज के समय में ये बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है समाज की सारी दुनिया में, क्योंकि ज्ञान का युग कहते हैं तो शिक्षा आवश्यक है और ज्ञान प्राप्त करना है तो साधन तो उसका शरीर ही है। स्वस्थ शरीर सब कुछ कर सकता है, अस्वस्थ शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, केवल इच्छा कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य भी आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि इसके लिए आदमी अपना घर बेच देगा लेकिन अच्छी शिक्षा में अपने लड़कों को भेजेगा, अपना घर बेच देगा लेकिन अच्छी जगह अपनी चिकित्सा हो इसका प्रबंध करेगा। और सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर। तो ऐसी चिकित्सा चाहिए समाज को जो सहज सुलभ हो, इसलिए अधिक जगह होनी चाहिए।
व्यापारीकरण के कारण केंद्रीकरण भी होता है। कारपोरेट का जमाना है तो शिक्षा का हब बन जाता है। अच्छी चिकित्सा पानी है तो कहां जाना, शहरों में जाना। बहुत अच्छी पानी है कैंसर वैंसर के लिए तो भारत में एक 8-10 शहर है जिसमें जाना पड़ता है। तो चिकित्सा का खर्चा अलग, रहने का खर्चा अलग, वहां आने जाने का खर्चा अलग। एक बीमारी है कैंसर जैसी, परिवार का क्या होगा, चिंता की बीमारी दूसरी, परिवार के सामने एक प्रश्न चिन्ह, हमारा क्या होगा। कई बातें हो जाती हैं। CSR वगैरह बहुत टेक्निकल और फॉर्मल शब्द है। हमारे यहां इसके लिए शब्द है धर्म। धर्म यानी सामाजिक जिम्मेवारी को निभाना। धर्म जोड़ता है समाज को। Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde, speaking in Vijaypur, praised the blood donation initiative that 1,200 donors from Maharashtra contributed in Jammu and Kashmir. He highlighted the Sindur Maha Blood Donation Yatra organized to honor the Indian Army's bravery in Operation Sindur. Shinde also referenced Operation Mahadev, which neutralized the preparators of the Pahalgam attack. He emphasized national gratitude and solidarity, stating, "Because you remain vigilant here, we can live in peace." आज पहली बार महाराष्ट्र से 1200 रक्तदाता यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में आए हैं और यहाँ पर रक्तदान किया है भारतीय सेना के लिए, हमारे देश के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और इसलिए मैं चंद्रहार पाटिल जो महाराष्ट्र डबल केसरी, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन महादेव हुआ, और हमारे भारतीय सेना, भारतीय जवान जो है उन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान को गोली का जवाब गोले से दिया है, खून का बदला खून से लिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। और उनके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी ताकत से खड़े रहे, ये पूरी दुनिया ने देखा है। और इसीलिए ये भारतीय जवान जो है इनका योगदान बहुत बड़ा है। और इसके लिए जिनको यहाँ पर ये जो हम आर्मी हॉस्पिटल में, एम्स हॉस्पिटल में, श्रीनगर में यहाँ पर रक्तदान कर ये चंद्रहार पाटिल और उनकी टीम जो है पहलवान जो महाराष्ट्र से आया है, ये इन्होंने सिंदूर महारक्तदान यात्रा शुरू की है। एक दिन का ये शिविर नहीं है, ये महारक्तदान यात्रा शुरू हुई है। और जब जब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ ये रक्तदान करेंगे, ऐसा संकल्प उन्होंने छोड़ा। इसलिए मैं उनके साथ हूँ और पूरी तरह ये देशभक्ति, ये राष्ट्रभक्ति जताने का काम है। और इसलिए मैं फिर एक बार जितने भी महाराष्ट्र से लोग यहाँ आए हैं, उन्होंने रक्तदान किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका मैं अभिनंदन। Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami confirmed that over 1,300 people have been airlifted from flood-hit areas in Uttarkashi following a devastating cloudburst and flash floods. Rescue operations supported by the Indian Army and Air Force continue amid challenging weather. Electricity and water supply have been restored in parts of Darali, Harsil and Mukwa. Dhami emphasized rapid relief efforts and pledged full support to affected residents. अभी तक जो रेस्क्यू अभियान चला है, सभी लोगों ने उसमें अच्छा समन्वय किया है, कोशिश की है हर एक व्यक्ति को बाहर निकाला जाए, हर एक जो संभव सहायता है वो करी जाए। उसके तहत लगभग अभी तक 1200 से अधिक लोगों को हेली सेवा के माध्यम से रेस्क्यू किया गया और अभी भी हेली सेवा हमारी चल रही है। स्थानीय लोगों को भी निकाला गया, जो गंगोत्री धाम, हरसिल, अन्य स्थानों पर आए हुए तीर्थयात्री थे, श्रद्धालु थे, उन सभी को निकाला गया है। बिजली वहाँ पर रिस्टोर हो गई है। आप सबको पता है कि पूरी बिजली की लाइनें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, बिजली की लाइनें चल गई हैं। टेलीफोन सुविधा वहाँ पर सुचारू हो गई है। राशन पर्याप्त मात्रा में वहाँ पहुँच गया है, कपड़े इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ जो ज़रूरी हैं सहायता के रूप में वहाँ पहुँच रही हैं। 5 लाख रुपए की धनराशि का हमने फौरी तौर पर जो तत्काल सहायता होती है उस सहायता
को भी जो है हमने जारी किया है कि वहाँ पर तत्काल लोगों को सहायता मिले। लगभग 107 परिवार हैं, उन सभी को जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके कोई लोग उसमें दिवंगत हुए हैं, उन सभी को ये सहायता हम लोग कर रहे हैं। सड़क मार्ग मंगल या बुधवार तक बन जाने की पूरी संभावना है। बैली ब्रिज जो हमारा लिमचा गाड़ है उसके पास, गंगनानी के पास, उसको रीइंस्टॉल करने की प्रक्रिया चल रही है और वो अंतिम चरण में है। आज रात तक वो शुरू हो जाएगा। कुछ एक पैदल यात्रियों के लिए शुरू हो गया है और गाड़ियों के लिए भी जल्दी शुरू होने वाला है। हमारा हर संभव प्रयास है कि अभी तक जो रेस्क्यू अभियान चला है सभी लोगों ने उसमें अच्छा समन्वय किया है। At the CIFF 2025, Delhi Chief Minister Rekha Gupta announced a new state film policy aimed at transforming Delhi into an international film hub. The policy includes a single window clearance system for film shoots, rupees 3 crore allocated for production infrastructure, and plans to host global festivals and awards. Gupta emphasized promoting film tourism and cultural expression, aiming to retain local talent and elevate Delhi's image beyond politics and history. अलग अलग इंडस्ट्रीज को इस दिल्ली शहर में इनवाइट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ का टूरिज्म बढ़े, यहाँ का एजुकेशन टूरिज्म बढ़े, यहाँ का हेल्थ टूरिज्म बढ़े और इसके साथ ही यहाँ का फिल्म टूरिज्म भी बढ़ना चाहिए। एक नई स्टेट फिल्म पॉलिसी लाने की भी हम तैयारी कर रहे हैं और ये भी हम चाहते हैं कि फिल्मों की शूटिंग्स भी यहाँ पर हो, फिल्म फेयर अवार्ड भी यहाँ पर हो और फिल्म फेस्टिवल भी यहाँ पर हो। एक भव्यता के साथ में दिल्ली में देश के कोने कोने से लोग आएं, वो देश विदेश से लोग आएं और मिल करके दिल्ली को ग्लोरीफाई करते हुए हम इन आयोजनों को करें। आज आपने उस इरा में पैर रख दिया है, एक शुरुआत कर दी है, काम का आगाज आपने किया है, इसे अंजाम तक पहुंचाने का काम दिल्ली सरकार करेगी। अलग अलग इंडस्ट्रीज को इस दिल्ली शहर में इनवाइट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ का टूरिज्म बढ़े, यहाँ का एजुकेशन टूरिज्म बढ़े, यहाँ का हेल्थ टूरिज्म बढ़े और इसके साथ ही यहाँ का फिल्म टूरिज्म भी बढ़ना चाहिए। एक नई स्टेट फिल्म पॉलिसी लाने की भी हम तैयारी कर रहे हैं और ये भी हम चाहते हैं कि फिल्मों की शूटिंग्स भी यहाँ पर हो, फिल्म फेयर अवार्ड भी यहाँ पर हो और फिल्म फेस्टिवल भी यहाँ पर हो। एक भव्यता के साथ में दिल्ली में देश के कोने कोने से लोग आएं, वो देश विदेश से लोग आएं और मिल करके दिल्ली को ग्लोरीफाई करते हुए हम इन आयोजनों को करें। आज आपने उस इरा में पैर रख दिया है, एक शुरुआत कर दी है, काम का आगाज आपने किया है, इसे अंजाम तक पहुंचाने का काम दिल्ली सरकार करेगी। Union Minister Gajendra Singh Shekhawat, attending the Pravasi Rajasthani Cultural Festival in Mira Bhayandar, praised the enduring cultural ties of Rajasthan diaspora. He emphasized that wherever they reside, Rajasthani communities remain deeply connected to their traditions and values. The event celebrated Rajasthan's rich heritage through music, dance and folklore, reinforcing the role of culture in national unity. देश के जिस किसी भी शहर में, जिस किसी भी राज्य की व्यापारिक केंद्र पर जाकर के काम किया है, वहाँ न केवल अपनी प्रभावी भूमिका अर्जित की, अपितु उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। लेकिन राजस्थान के प्रवासी जहाँ कहीं भी रहे, देश में और देश के बाहर धरती के किसी भी कोने पर रहे, वो अपनी संस्कृति से, अपने पारिवारिक मूल्यों से और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से निरंतर जुड़े रहते हैं। आज यहाँ ये परिवार का उत्सव था। श्रावण के पूर्णिमा के बाद में इस तरह के पारिवारिक उत्सव में आकर के मुझे अत्यंत प्रसन्नता है और मैं यहाँ प्रवासी राजस्थानियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए
वो सब लोग अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से जिस प्रयोजन को लेकर के आए, उस प्रयोजन के राजा इस तरह के देश में अनेक अनेक ऐसे शहर हैं जहाँ, जैसा मैंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने अपनी प्रभावी भूमिका बनाई है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे राजस्थान की जड़ से जुड़े हुए, राजस्थान की माटी से जुड़े हुए श्री नरेंद्र मेहता जी यहाँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा अवसर दिए जाने पर यहाँ के विधायक बने। रवि व्यास यहाँ पहले जिले के अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त भी इस क्षेत्र में अनेक सम्मानित ओहदों पर, सामाजिक के संगठनों में भी राजस्थान के बेटों ने बहुत प्रभावी भूमिका। देश के जिस किसी In Nagpur, Congress leader Vijay Wadetwar strongly supported Rahul Gandhi's accusations against the Election Commission alleging voter list tampering and corruption. He claimed the EC deleted official voter data and failed to respond when Gandhi presented evidence. Wadetwar said it is shameful to ask such questions. The government and BJP ministers are answering, not the autonomous institution. His remarks follow Rahul Gandhi's charge that the 2024 elections were choreographed to favor the BJP, citing irregularities in Maharashtra and Karnataka. अरे चुनाव आयोग करप्ट आयोग है जो चोरी करके ईमानदारी को सवाल खड़ा करेगा। तुमने अपने अधिकृत ऑफिशियल वेबसाइट से जो चुनाव की यादी थी, वोटर लिस्ट थी, उसको गायब कर दिया गया, उसमें हेराफेरी की और उल्टा सवाल पूछते हो। शर्म आना चाहिए इस तरह का सवाल करते वक्त। जो स्वायत्त संस्था है जो एविडेंस के साथ में राहुल गांधी ने ये दिया है, तो उसका जवाब नहीं देती है। जवाब कौन दे रहा है? तो सरकार दे रही है, बीजेपी दे रही है, बीजेपी के मंत्री दे रहे हैं, सीएम दे रहे हैं। सवाल किसको पूछा जा रहा है? और इस तरह का देश से माफी कौन मंगवाएगा? एविडेंस है, पुरावा है, इसका जवाब होना चाहिए। एक वोटर 10-10 जगह में कैसा होता है? एक घर में 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग रह सकते हैं। 700-700, 500-500 लोग कैसे रह सकते हैं? और उसका घर नंबर भी 0-0 कैसे डाला जा सकता है? ये पूरा जो दिया गया है, तो तब ये डर गए हैं चुनाव आयोग, डर के मारे ऑफिशियल वेबसाइट से छेड़खानी की। और बात करते हैं कि राइटिंग में जो जनता जवाब मांग रही है, देश की जनता मांग रही है कि आपने हेराफेरी करके बीजेपी को चुनाव जितवा कर दिया है। और ये जब दिख रहा है तो वही सवाल राहुल जी ने उठाया है। देश में अभी बहुत बड़ा अनरेस्ट है, गुस्सा है लोगों में, ये बेईमानी करके भाजपा चुनाव जीतती है करके। तो सवाल उनको पूछो, हमें क्या पूछते हो? और सवाल हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा है, चुनाव आयोग से पूछा है। कोई वकीली करने के लिए इनको कोई वकील पत्र नहीं दिया है, बाकी लोग जवाब दे रहे। हमारा यही कहना है, राहुल जी ने एविडेंस के साथ में दिया है, आप उसके ऊपर कार्रवाई करो। और इस तरह की बेबुनियाद बातें करना चुनाव आयोग को शोभा नहीं देता। अरे चुनाव आयोग करप्ट आयोग है जो चोरी करके ईमानदारी को सवाल खड़ा करेगा। तुमने अपने अधिकृत ऑफिशियल वेबसाइट से जो चुनाव की यादी थी, वोटर लिस्ट थी, उसको गायब कर दिया गया, उसमें हेराफेरी की और उल्टा सवाल पूछते हो। शर्म आना चाहिए इस तरह का सवाल करते वक्त। जो स्वायत्त संस्था है जो एविडेंस के साथ में राहुल गांधी ने ये दिया है, तो उसका जवाब नहीं देती है। जवाब कौन दे रहा है? तो सरकार दे रही है, बीजेपी दे रही है, बीजेपी के मंत्री दे रहे हैं, सीएम दे रहे हैं। सवाल किसको पूछा जा रहा है? और इस तरह का देश से माफी कौन मंगवाएगा? एविडेंस है, पुरावा है, इसका जवाब होना चाहिए। एक वोटर 10-10 जगह में कैसा होता है? एक घर में 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग रह सकते हैं। 700-700, 500-500 लोग कैसे रह सकते हैं? और उसका घर नंबर भी 0-0 कैसे डाला जा सकता है? ये पूरा जो दिया गया है, तो तब ये डर गए हैं चुनाव आयोग, डर के मारे ऑफिशियल वेबसाइट से छेड़खानी की। और बात करते हैं कि राइटिंग में जो जनता जवाब मांग रही है, देश की जनता मांग रही है कि आपने हेराफेरी करके बीजेपी को चुनाव जितवा कर दिया है। और ये जब दिख रहा है तो वही सवाल राहुल जी ने उठाया है। देश में अभी बहुत बड़ा अनरेस्ट है, गुस्सा है लोगों में, ये बेईमानी करके भाजपा चुनाव जीतती है करके। तो सवाल उनको पूछो, हमें क्या पूछते हो? और सवाल हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा है, चुनाव आयोग से पूछा है। कोई वकीली करने के लिए इनको कोई वकील पत्र नहीं दिया है, बाकी लोग जवाब दे रहे। हमारा यही कहना है, राहुल जी ने एविडेंस के साथ में दिया है, आप उसके ऊपर कार्रवाई करो। और इस तरह की बेबुनियाद बातें करना चुनाव आयोग को शोभा नहीं देता। अरे चुनाव आयोग
Gujarat Home Minister Harsh Sanghvi led a grand Tiranga Yatra in Surat, celebrating patriotism and unity ahead of Independence Day. Thousands of citizens, including students, bands and cultural groups, joined the 1.8-kilometer procession themed Har Ghar Tiranga, Har Ghar Swachha. Sanghvi praised the spirit of Ma Bharati and saluted the bravery of soldiers, referencing Operation Sindhu's swift response to terrorism. The event showcased cultural diversity and aimed to inspire national pride across communities. आज सूरत शहर के नागरिकों ने साथ में मिलके देशभक्ति के नाम पे एक नया इतिहास बनाया है। हजारों की संख्या में लोगों ने मां भारती के नारे लगाते लगाते ये तिरंगा यात्रा में भाग लिया। बहुत ही बड़ी संख्या में अलग अलग बैंड्स जुड़े, अलग अलग मैस्कोट्स जुड़े, अलग अलग स्कूल्स ने अपने अपने प्रतिनिधित्व किया। इसी प्रकार से अलग अलग राज्य ने अपने अपने परिभाष में ये यात्रा में लोग जुड़े और खास तौर पे ये किलोमीटरों की यात्रा में दोनों ओर हजारों की संख्या में नगरजनों ने ये यात्रा को फूल बरसा के स्वागत किया। देशभक्ति के रंग में पूरा देश रंगा हुआ है। मोदी जी के मार्गदर्शन में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर घर तिरंगा का ये अभियान बहुत ही उत्साहपूर्वक आगे बढ़ रहा है। आज गुजरात की यात्राओं का प्रयाण हुआ है, कल वडोदरा में होगा, परसों राजकोट में होगी और 13 तारीख को अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। पूरे गुजरात में हर गांव से लेके कस्बे तक हर जगह पे तिरंगा यात्रा का आयोजन सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया गया है। खास तौर पे सूरत शहर के सभी नगरजनों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। ये एक नया विश्व विक्रम बनाया है। सभी नागरिकों ने साथ में मिलके देशभक्ति के रंग में आज रंगे हैं। In Lucknow, Minister Danish Azad Ansari announced that every department in Uttar Pradesh is drafting a vision document 2047 to support Prime Minister Narendra Modi's goal of a developed India by 2047 under Chief Minister Yogi Adityanath's leadership. The state is holding a 27-hour marathon session to debate the roadmap for holistic development. The initiative includes public participation through QR codes and workshops with the Niti Aayog, focusing on infrastructure, education, health and inclusive ग्रोथ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारा भारत देश 2047 में विकसित भारत बने, तो उस विकसित भारत का जो सपना प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उसमें उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार कैसे कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेगी, इसका एक विजन डॉक्यूमेंट 2047 हर डिपार्टमेंट बनाने जा रहा है कि किस तरीके से हर डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकसित भारत 2047 का संकल्प लेगा। ये वो विजन डॉक्यूमेंट है जिसमें उद्योग हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, कल कारखाने हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तमाम डेवलपमेंट के काम हो, इसको कैसे हर डिपार्टमेंट पूरा करेगा और विकसित भारत को हम किस तरीके से इस सपने को पूरा करेंगे, उसका पूरा डॉक्यूमेंट हम पेश करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारा भारत देश 2047 में विकसित भारत बने, तो उस विकसित भारत का जो सपना प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उसमें उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार कैसे कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेगी, इसका एक विजन डॉक्यूमेंट 2047। That's the wrap of the Inside News. For more updates, stay tuned to CVR News English.